स्क्रीन बताइए एक बार, आप स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके ओके. So good morning everyone. Today we are start the offense against the human body, chapter 6 of a भारतीय न्याय संहिता. और इस चैप्टर 6 में हम ये जानेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट या फिर ह्यूमन बॉडी रिलेटेड कौन कौन से ऑफेंस है. फर्स्ट वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट द कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, वन ऑफ द टू मेजर इंपॉर्टेंट सेक्शन of every criminal offenses, every criminal statutes. Culpable homicide and murder, both are the two similar type of offenses, we can say, where the output is similar, the death of a person. If a person has been died because of your act, then you will be liable either for the culpable homicide or for the murder. Now by virtue of section 100 and section 101, we have to be recognize and rectify that in which criteria you will be liable for culpable homicide and in which criteria you will be liable for murder. Clear? First, if I talk about the culpable homicide, it's two words, that is a culpable and the homicide. Homicide means a killing of a person, death of a human being by a human being. ठीक है? It's deal with the death of a murder of a human being, not the any other animals and any other creatures. Should be died by the human being, by the another human being. If the one human being has been killed and died by because of the some another animals and any type of other creatures apart from the human being, that will not be come under the criteria of homicide. For the homicide, it's required that human being killed by the another human being, and that act, that killing is culpable, punishable. That killing is punishable. It means if the human being is killed by the another human being and that killing is not punishable, that cannot become under the culpable homicide. For example, if a judge order a person for a death penalty and the officer and the person who appointed to give the death, that guy, he will not be liable for to doing that act. Is it or not? तो जो एक्ट जिससे डेथ कॉज हो रही है वो पनिशेबल हो और वो डेथ जो कॉज हुई है वो बाय ह्यूमन बीइंग टू अनदर ह्यूमन बीइंग हो, that thing with the culpable homicide. Now we read the section 100 very carefully and find out that what are the circumstances of a culpable homicide. It says that whoever caused death by doing an act, it means that is the actus rea. By virtue of the act, the death has been caused. So first essential ingredient is required, the death of a person. Second thing, death has been caused by because of some act, एक एक्ट के थ्रू हुई हो कोई डेथ. एंड नेक्स्ट इज अबाउट द मेंस रिया विद द इंटेंशन. थ्री थिंग्स आर देयर. डेथ हैज बीन डन बाय वर्च्यू ऑफ एक्ट विद द इंटेंशन. क्लियर? अब ये इंटेंशन कौन कौन सी होंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ. फर्स्ट थिंग कल्पेबल होमिसाइड सेड कि अगर कोई इंटेंशनली डेथ कॉज करने के लिए कोई एक्ट करता है और डेथ हो जाती है तो वो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा. डन. Second thing, or with the intention of causing such bodily injury is likely to cause death. Second thing it is that second intention they are give to cause bodily injury which are likely to cause death. कि इतना मैंने किसी को इंजर्ड करा कि वो मर ही जाएगा, मर ही सकता है. क्लियर विद दैट? इस इंटेंशन से मैंने उसको इतना हार्म पहुंचाया है कि वो मर जाए. ठीक है? एक तो होता है मार दिया और एक होता है इतना हार्म कर दिया कि वो मर जाएगा. और विद नॉलेज. थर्ड थिंग इज दैट, दो बातों में ध्यान रखना कि फर्स्ट और सेकंड में हमने वर्ड यूज करा है इंटेंशन एंड इन अ सेकंड वी यूज द वर्ड नॉलेज. इन थर्ड वी यूज द वर्ड नॉलेज. इट मीन्स knowledge are quite less mens rea in comparatively to the intention. What the knowledge said? It knowledge that he is likely by such act to cause death commit the offense of culpable homicide. कि मैंने कोई ऐसा एक्ट करा जिससे किसी की डेथ हो सकती है. आई डिड सम लाइक एक्ट. सपोज मैं किसी व्यक्ति को कोई बच्चा है या फिर कोई एक अडल्ट है, मैं उसे किसी आइलैंड पे अकेला छोड़ देता हूँ. मैं जा रहा हूँ उसे आइलैंड पे अकेला छोड़ के वहाँ से आ गया. देट इज अ क्वाइट चांस दैट ही विल बी डाइड वन डे बिकॉज ऑफ हंगरनेस और बिकॉज ऑफ एनी टाइप ऑफ एनिमल अटैक. इज इट और नॉट? So three things is required in a culpable homicide. First is that the intention to cause death, either can be the intention to cause bodily injury which is likely to cause death, and third is like that knowledge to do act which can be cause the death. कोई ऐसा एक्ट करा जिससे डेथ हो सकती है. ठीक है?
तो कल्पेबल होमिसाइड में तीन बातों का हमने जिक्र करा कि इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, लाइकली टू डेथ, ठीक है, एंड थर्ड इज नॉलेज टू डू एक्ट विच कैन कॉज डेथ। क्लियर? दैट इज द कल्पेबल होमिसाइड। अगर आप इन तीनों चीजों में कहीं भी लाइबल होते हैं, आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल होंगे। अब हम आते हैं इन नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 101, दैट इज अबाउट द मर्डर। व्हाट इज दैट कि कल्पेबल होमिसाइड पहले आता है, मर्डर उसके बाद में आता है। इसका मतलब ये है कि वेन एवर यू गो इन अ कोर्ट एंड यू ट्राई टू प्रूव अ ऑफेंस, तो कल्पेबल होमिसाइड आप पहले प्रूव करेंगे, फिर बताएंगे कि ये मर्डर है। ऐसा नहीं होगा कि आप डायरेक्टली मर्डर प्रूव कर देंगे, पहले कल्पेबल होमिसाइड फिर मर्डर। अगर वो कल्पेबल होमिसाइड ही प्रूव नहीं होता तो मर्डर का कोई चांस ही नहीं है, और दोनों का आउटपुट डेथ है। अगर डेथ नहीं हुई तो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर दोनों ही नहीं लग सकते, ठीक है, दोनों का आउटपुट डेथ है और दोनों ही काफी सिमिलर हैं। नाउ वी हैव टू बी रेक्टिफाई कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। फर्स्ट इज दैट, क्लियर विद द फर्स्ट लाइन, एक्सेप्ट इन केस हियर इन आफ्टर एक्सपेक्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। अगर जो मैंने एक्सपेक्टेड केस दे रखे हैं, जो आगे मैंने कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं इन सेक्शन 101, दे प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ एक्सेप्शन। अगर कोई भी ऑफेंस उन कोई भी मर्डर उन एक्सेप्शंस में आता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा। अदरवाइज जितने भी कल्पेबल होमिसाइड हैं, कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, जितना भी कल्पेबल होमिसाइड है वो सब मर्डर हैं। ये लाइन क्लियर हुई? एक बार फिर से सुनेंगे कि 101 के सेक्शन 101 में जो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, अगर कोई ऑफेंस, कोई डेथ उसमें फॉल करती है उन एक्सेप्शंस में, तो वो तो है कल्पेबल होमिसाइड। एक्सेप्शंस के अंदर जितनी भी डेथ फॉल करेंगी कल्पेबल होमिसाइड होंगी। इसके अलावा कोई डेथ हुई एक्सेप्शन में फॉल करी, कल्पेबल होमिसाइड बन गई। कौन सी एक्सेप्शन? सेक्शन 101 की। लेकिन डेथ हुई सेक्शन 101 की एक्सेप्शन में फॉल नहीं कर रही तो वो मर्डर है। क्लियर? अब ये इसके बाद क्या कहता है, इज मर्डर। व्हाट इट सेड इफ द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड डन विद इंटेंशन टू कॉजिंग डेथ। अगर कोई एक्ट जिसको इस उद्देश्य से करा गया है जिसमें व्यक्ति की डेथ ही हो तो वो मर्डर होगा। इसका मतलब सेक्शन 10 की जो पहली बात थी, नॉट सब क्लॉज, सेक्शन 10 में जो 100 में जो हमने फर्स्ट चीज पढ़ी थी, इंटेंशन टू कॉज डेथ, एंड सेक्शन 101 सब क्लॉज ए आर सिमिलर। अगर आप 101 ए प्रूव करें या 100 का पहला पार्ट प्रूव करें तो वो दोनों ही बात समान होंगी। क्लियर? अब चलते हैं हम सेक्शन 101 सब क्लॉज बी और सी को एक साथ लेके चलेंगे। बोथ आर अबाउट द बॉडीली इंजरी। व्हाट दे सेड इफ द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज done with intention to cause such bodily injury as the offender know to be likely to cause death of the person to whom harm is caused. If the person who caused the death and caused the bodily injury and person who caused the bodily injury knows that that bodily injury is sufficient for that person to cause death. मैं ये कह रहा हूं कि ऑफेंडर ने जिसने बॉडीली इंजरी कॉज करी, अगर वो यह जानता है कि जो मैंने बॉडीली इंजरी दी है इस वाले विक्टिम के लिए डेथ कर देगी, इसका मतलब वो विक्टिम की मेंटल एंड फिजिकल स्टेट से अवेयर है, वो उसकी मेडिकल हेल्थ के बारे में अवेयर है, उसे पता है कि इतना मारने पे ये मर जाएगा। ही अवेयर विद दैट। सपोज किसी को डायबिटीज है और ही इज अ स्ट्रेंजर फॉर भी, और मेरी उससे लड़ाई हो जाती है विद ड्यू टू बिकॉज ऑफ एनी 2-3 पंच, उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, मुझे नहीं पता कि वो डायबिटिक है, तो मेरे पंच से वो मर जाता है, लेकिन आई नो दैट पंच इज नॉट सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन अ ऑर्डिनरी केस, बट बिकॉज ऑफ ही इज सम डायबिटिक पेशेंट, दैट्स व्हाई द डेथ इज कॉज। तो उसमें मैं मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल नहीं हूंगा, क्योंकि मेरी इंटेंशन वो बॉडीली इंजरी देने की थी नहीं कि वो मर जाए। लेकिन यहीं पे अगर मुझे पता है वो डायबिटिक है, या फिर मुझे पता है वो हार्ट पेशेंट है और मैं हार्ट पे 3-4 पंच कर देता हूं, so it means I am aware about it, my bodily injury is completely sufficient as per my knowledge। ये एक्स्ट्रा चीज हमने कल्पेबल होमिसाइड से मर्डर में एक्स्ट्रा ऐड करी, समझे आप ये?
अगली एक और चीज ये कहता है कि इफ द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग bodily injury to any person and the bodily injury intended to inflicted is sufficient, mark that word sufficient, in the ordinary course of nature to cause such death. In a section 100 we read the word likely to cause death in a case of bodily injury, लेकिन यहाँ पे हमने यूज करा है sufficient है. Likely and sufficient, these are the two words, likely and sufficient. It used in a section 101 subclause C and it used in a section 100 in a second part. Let me show you once. Here we use the word likely. Noted that. ठीक है, सेक्शन 100 में सेकेंड लाइन likely word, intention to cause such bodily injury as is likely to cause death. ठीक है, और यहां पे वर्ड यूज हुआ है intention to cause such bodily injury intended to inflicted is sufficient in ordinary course. It means कि likely तो होता है कि मर जाएगा, लगता है. sufficient का मतलब कि आप बिल्कुल श्योर है कि मरेगा ही. That thing shows that the gravity of offense, gravity of intention in murder is quite higher than the culpable homicide. मर्डर के अंदर जो व्यक्ति की इंटेंशन है, ग्रेविटी है, वो उसके एक्ट से पता चलते कि वो बिल्कुल श्योर है, वो उसकी स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल श्योर है कि मुझे इस व्यक्ति की डेथ कॉज करनी ही करनी है बाय वर्च्यू ऑफ माय एक्ट. अगर रिजेंबल लाइक है कि हाँ हो जाएगी डेथ, नॉर्मल है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड है. बट बिल्कुल श्योर स्टेट ऑफ द माइंड है, सफिशिएंट इंजरी आपने दी है, या फिर आप उसकी नो अवेयर हो कि उसकी हेल्थ क्या है, तो फिर आप उसमें मर्डर के लिए लाइबल होगी. ये बात यहां पे समझ आई. अगला सेक्शन पढ़ते हैं. इट्स अबाउट द एक्ट, नॉलेज ऑफ एक्ट, कि आपने कोई ऐसा एक्ट करा जिसकी नॉलेज थी जिससे डेथ हो सकती है. ये कल्पेबल होमिसाइड के सेक्शन 100 की तीसरी बात थी. यहां पे ये क्या कहता है, इफ एनी पर्सन कमिटिंग द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड, किसी व्यक्ति के कुछ एक्ट करने से डेथ हुई, और नो दैट इट्स सो इमिनेंटली डेंजरस, उसको पता है कि जो वो उसने एक्ट करा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी टू कॉज डेथ और सच बॉडी इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, कि उसे पता है कि जो मैं एक्ट कर रहा हूँ उसमें मैक्सिमम चांसेस इतने हैं कि वो मर ही जाएगा, एंड कमिट सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज. और जब वो एक्ट कर रहा है उसके पास कोई रीजनेबल कारण भी नहीं है वो एक्ट करने के लिए, फिर भी वो काम कर रहा है और रिस्क ले रहा है दूसरे व्यक्ति की डेथ कॉज होने का, तो दैट इज कम अंडर द मर्डर. अभी मैंने कल्पेबल होमिसाइड में एग्जांपल दिया कि आप किसी बच्चे को या अडल्ट को आयरलैंड में छोड़ के अपने घर आ गए, बच्चा मर सकता है, देयर इज अ क्वाइट चांस. लेकिन आपने किसी बच्चे को आयरलैंड पे छोड़ा या अडल्ट को आयरलैंड पे छोड़ा और उसके चारों तरफ घूम रहे हैं आयरलैंड के कि यहाँ से बाहर ना निकल जाए, जिंदा बाहर ना निकल जाए, आप ये फिक्स कर रहे हो, इट मीन्स यू कंप्लीटली बाउंड रेडी टू किल दैट गाय. आपने खुद नहीं मारा, लेकिन आपने ऐसा एक्ट करा है कि जिससे आप कंफर्म हो कि इससे मर जाएगा, और आप मरने का वेट नहीं कर रहे, आप कंफर्मेशन भी ले रहे हो वहां पे रह के. एक होता है कि मैंने किसी के घर में आग लगाई, गेट और खिड़कियां खुले छोड़ दिए, क्वाइट चांसेस कि मर भी सकते हैं या फिर बच के बाहर भी निकल सकते हैं. एक होता है कि मैंने घर में आग लगाई और सारी खिड़की सारे गेट क्लोज कर दिए, तो अब मैं वहां बाहर भी खड़ा हूं कि बाहर निकल गई तो द्वारा अंदर भेज दूंगा आग में. That is the thing कि completely liable for that act and it is a murder in rare to the culpable homicide. Clear? Any doubt here? I just repeat once. In a culpable homicide, three things are required. First, the death. दोनों की मैं बताता हूँ. मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में तीन चीजें चाहिए. सबसे पहले डेथ हो, आपके एक्ट की वजह से वो डेथ हो रही हो, और आपकी इंटेंशन हो. ये बातें तीन दोनों में कॉमन है. 100 एंड 101 में क्या कॉमन है, यहां पे लिखते हैं. कॉमन चीजें है डेथ, एक्ट और इंटेंशन, कल्पेबल और मर्डर में. अगर मैं इंटेंशन की बात करूं तो यहां पे चीजें अलग अलग हैं. कल्पेबल एंड मर्डर. कल्पेबल में क्या मांगता है, इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज लाइकली बॉडीली इंजरी विच कॉज डेथ, और एक्ट. मर्डर में क्या कह रहा है, इंटेंशन टू कॉज डेथ. ये वाला तो सिमिलर है. इसके बाद जो दो हैं, बॉडी इंजरी में उसने कहा है कि सफिशिएंट इंजरी हो और वो कंप्लीटली श्योर हो, अवेयर हो, नॉलेज ऑफ द
कंडीशन ऑफ दैट गाय, जिसको वो मार रहा है उसकी मेडिकल फिटनेस की उसकी नॉलेज हो। नॉलेज ऑफ एक्ट में अब वो क्या कह रहा है, नॉलेज ऑफ एक्ट में कह रहा है कि कंप्लीटली डेंजर है और हाई प्रोबेबिलिटी है कि डेथ कॉज होगी। नो एक्सक्यूज, विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज वो एक काम कर रहा है, वो इंश्योर है कि वो डेथ कॉज कर देगा एंड ही डिड दैट एक्ट। It means in a case of murder, offense gravity is higher, criminal intention is higher, person are completely insure with that act and there is a complete strong mental state of a offender। ठीक है, ये आपका 100 and 101 की बातें रही। इसके अलावा बस हम एक गो विद द एक्सेप्शंस के एक्सेप्शन में क्या है। फर्स्ट इज अबाउट द कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। हाँ जी बताइए। इलस्ट्रेशन, चलो एक दो इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन बड़ी सिंपल यू डायरेक्टली गो विद दैट एंड यू कैन बी यूज। सी करते हैं, ए इंटेंशनली गिव अ स्वॉर्ड कट और क्लब वॉन्ट सफिशिएंट टू कॉज डेथ ऑफ अ मैन इन अ ऑर्डिनरी कॉज ऑफ नेचर, जेड डाई इन कॉन्सिक्वेंस, हियर इज ए गिल्टी ऑफ मर्डर ऑल्सो ही मे नॉट हैव इंटेंटेड टू कॉज जेड डेथ। ए ने जेड को एक तलवार से काट दिया, मतलब एक कट दिया, और नॉर्मल कॉज में ऑर्डिनरी पर्सन में उसमें मर जाता, लेकिन एक ही इंटेंशन नहीं थी उसे मारने की, लेकिन उसकी बॉडीली इंजरी सफिशिएंट थी। ये बात समझना, एक होता है कि मैं आपको मारना चाहता हूं, एक होता है कि मैं आपको इतनी बड़ी चोट देना चाहता हूं कि जिससे आप मर भी सकते हो, सफिशिएंट इंजरी, मुझे पता है मैं मर सकते हो। ऑर्डिनरी पर्सन में इतना दिमाग है कि इतनी इंजरी अगर किसी को देगा तो मर जाएगा। मारने की इच्छा नहीं थी, लेकिन इतनी इंजरी देने की जरूर इच्छा थी। कोई व्यक्ति इस चीज का डिफेंस नहीं ले सकता, मारना नहीं चाहता था लेकिन इंजरी तो यही देना चाहता था। तो जेड विल बी लाइबल फॉर, ए विल बी लाइबल फॉर द जेड्स डेथ। क्लियर? चलो इलस्ट्रेशन आप खुद करें एक बार, पहले अच्छे से सेक्शन पढ़े, इलस्ट्रेशन पढ़े, जो इलस्ट्रेशन समझना थी वो आप फिर डिस्कस करें, क्योंकि ना इलस्ट्रेशन में बता दूंगा तो काफी ईजी हो जाएगा, थॉट करने का आपको ना मौका नहीं मिल पाएगा। यू शुड बी थिंक अबाउट इट। मैं हमेशा आपसे लॉ में यही बोलूंगा, पढ़े बहुत कम, सोचे बहुत ज़्यादा। जितना लीगल माइंड डेवलप होगा, थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। अब क्या है कि मैंने इलस्ट्रेशन कराई, आपके समझ आएगी, अगर एग्जाम में ये इलस्ट्रेशन आ रही है तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज यू विल बी ब्लैंक। और ये इलस्ट्रेशन आप खुद समझेंगे तो वो कंसेप्ट समझ आ जाएगा। तो प्रैक्टिस इट बाय वर्च्यू ऑफ इलस्ट्रेशन। एक बार इलस्ट्रेशन पढ़ के इनको प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। एक बार आप कर लीजिए, अगर दिक्कत आती फिर मैं कल करवा दूंगा, ठीक है। डेफिनेटली इलस्ट्रेशंस आती हैं बिल्कुल, और सेम आ जाती हैं, सेम आ जाती है। देखो दो तरीके हैं, या तो इलस्ट्रेशन सारी याद कर लो, या फिर मेरा ये है कि इलस्ट्रेशन को एज अ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, फिर चाहे ये आए या कहीं और से आए, आपके कंसेप्ट क्लियर है। तो मेमोराइज, इलस्ट्रेशन जैसा पोर्शन मेमोराइज ना हो, वो तो लर्न हो, ठीक है। लर्न इन द सेंस कि वो कंसेप्ट क्लियर हो, है ना, रटने वाला ना हो इलस्ट्रेशन के साथ। चलो एक बार एक्सेप्शंस पढ़ लेते हैं। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर विल्स डिप्राइव्ड ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड ग्रेव द सडन प्रोवोकेशन कॉज डेथ ऑफ अ पर्सन। सिंपल इज सेड दैट कि अचानक गुस्सा आने की वजह से या फिर हीट ऑफ द मोमेंट की वजह से मैंने अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया और उसमें व्यक्ति की मैंने हत्या कर दी। इट्स अ मर्डर, बट इट्स नॉट बी ट्रीटेड एज अ मर्डर, इट विल बी ट्रीटेड एज अ कल्पेबल होमिसाइड, कि गुस्सा आ गया था जी इसलिए मार दिया। अब ये नहीं कह सकते कि ऑफेंस नहीं हुआ, ऑफेंस तो हुआ। आई टेल अबाउट द ग्रेविटी। यहाँ पे चलो एक बार फिर समझना कि थोड़ा सा अजीब लगेगा ये सुनने में। ग्रेविटी इन द सेंस इज लाइक दैट कि एक होता है कि मैं घर से निकला, मेरी क्रिमिनल इंटेंशन है, मैं किसी व्यक्ति को मारने गया। एक होता है कि मेरी लड़ाई हुई, कुछ उससे ईगो क्लैश हुआ, ऑन द स्पॉट लड़ाई हुई और बिना सोचे समझे मैंने अपने आप पे कंट्रोल खोया, अपना आपा खोया और फिर उसको मार दिया। तो वो मारना कल्पेबल होमिसाइड है। और आराम से मैं लड़ाई करके घर आ गया, मैं सो रहा हूँ, फिर मैं प्लान कर रहा हूँ, फिर मैं कल जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं बहुत क्रिमिनल टेंडेंसी का व्यक्ति हूँ, तो उसमें मैं मेरे पर मर्डर लगेगा। डेफिनेटली, तो वो तो चीज मैंने अलग से बताई है ना। देखो कॉज टू डेथ, बॉडीली इंजरी और एक्ट, वो तो उसके पार्ट हैं।
एक होता है अगले दिन सो के मैं गया और उसको इतनी सफिशिएंट बॉडी इंजरी दी, मैं मानना नहीं चाहता था, लेकिन इतनी इंजरी जरूर दी कि व्यक्ति, ऑर्डिनरी व्यक्ति उसमें मर जाता, वो मर्डर है। उसी टाइम पे उसी सर्कमस्टांसिस में अगर मैं उसे सिर्फ बॉडीली इंजरी देता हूँ, सडन हीट ऑफ द मोमेंट, तो वो अपनी कल्पेबल होमिसाइड है। हाँ हाँ, उसकी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन उसने एकदम अचानक प्रोवोकेशन में इतना काज किया कि उसकी डेथ हो गई है, तो भी तो वही रीजन हुआ ना सर, उसकी इंटेंशन तो नहीं थी, उसने कट किया इतना ज्यादा। अच्छा और आप मुझे पहले ये बताइए कि प्रोवोकेशन में अगर कोई व्यक्ति किसी को मार देता है तो क्या वो ऑफेंस है या नहीं, आपके हिसाब से वो इट्स अ ऑफेंस और नॉट? सर क्या एक वो आप सेंस उसे में ये कह देखो सकते हो कि उसकी एक्चुअल में ना मेंसरिया तो नहीं थी? नहीं, मैंसिलिया तो नहीं है उसके यहाँ पे। अगर प्रोवोकेशन में आई किल्ड समवन तो यू कैन से दैट देयर इज अ नो मेंसरिया देयर? हाँ जी, एकदम अचानक ही हो गया उसका तो। No, ma'am, no. Again, think about it. It's very wrong if you think like that. Now, put that situation in a simple with yourself. अगर मैं प्रोवोकेशन के नाम पे मर्डर अलाउ कर दूं, तो आप मुझे ये बताइए कि गुस्सा किसको नहीं आता? इन criminology subject in our master CPV we read criminology, penology and victimology. I said you about a theory. What they said कि क्रिमिनल तो हर किसी के अंदर है और लाइफ सबको अपॉर्चुनिटी देती है क्राइम करने का। हम सब चाहते हैं किसी ना किसी से हमारी लाइफ में लड़ाइयाँ होती हैं कि हम उसे मार दे, ख़त्म कर दें, पर वो मोमेंट ही डिसाइड करता है कि मैंने बैकआउट करा, मैंने नहीं वो काम करा, तो मैं एक गुड सिटीजन हूँ, गुड सिविलियन हूँ, और वहीं पे मैंने अगर क्राइम अडॉप्ट कर लिया तो आई एम अ क्रिमिनल। अगर मैं प्रोवोकेशन का डिफेंस बना दूं तो फिर तो कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं कभी भी कहीं पे। तो मतलब एक्सेप्शन में तो इन्होंने प्रोवोकेशन को डिफेंस ही बनाया ना सर। नहीं, इन्होंने बस थोड़ा सा देखो, कोर्ट यहाँ पे चाह क्या रहा है, कोर्ट कह रहा है कि भैया दो चीज हैं, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, दोनों ही ऑफेंस हैं। बस वो कह रहा है कि मर्डर में तो मैं डेथ पेनल्टी देता हूँ, हाँ जी सर। कल्पेबल होमिसाइड में मैं कम सजा दे रहा हूँ, 10 ईयर 12 ईयर वट एवर भी दे यार, वो हम आगे रीड करेंगे। कल्पेबल होमिसाइड की सजा थोड़ी सी कम है, दोनों में डेथ है, ऑफेंस दोनों है। बस कोर्ट ने थोड़ा सा बाइफर्केशन करके हर किसी को डेथ पेनल्टी देने से अपने आप को बचाया है यहाँ पे, कुछ कुछ केसेस में, जैसे कि सडन प्रोवोकेशन में, कि सडन प्रोवोकेशन में थोड़ी सी उसको सजा कम दे दो, इसलिए उसे कल्पेबल होमिसाइड में गिर दो, और एक्सेप्शन में जितनी भी चीजें आ रही हैं वो डायरेक्टली कल्पेबल होमिसाइड में जाएंगी। हाँ जी सर। ठीक है, ये कोर्ट का और स्टैच्यूट का मेन मोटिव है, डिफेंस नहीं है ये बिल्कुल भी। एक्सेप्शन में जो मैं बता रहा हूं ये डिफेंस नहीं है, ऑफेंस तो है, मर्डर का नहीं है लेकिन कल्पेबल होमिसाइड का है। अब चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल। हाँ जी सर। चल, तो अगर प्रोवोकेशन में किसी की कोई हत्या होती है तो वो आपका कल्पेबल होमिसाइड है। फिर इसमें इंटेंशनली उसने किया ही कॉज और वो सफिशिएंट था उसकी डेथ के लिए कॉज, तो वो फिर कल्पेबल होमोसाइड में जाएगा या डेथ में जाएगा सर? हाँ फिर से बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? अभी एक ही इंटेंशन ही थी जेड को मारने की, लेकिन उसने उसको इतना ज्यादा कट दे दिया कि वो सफिशिएंट है उसकी डेथ के लिए, तो हम्म, वो उसमें जाएगा सर, डेथ में जाएगा या वो अगर उसकी कल्पेबल? इंटेंशन डेथ की तो नहीं थी, मैंने हाँ माना, जी सर। लेकिन उसकी इंटेंशन सफिशिएंट बॉडीली इंजरी देने की थी, सफिशिएंट बॉडीली इंजरी इन विच अ नॉर्मल पर्सन कैन बी डाई, ठीक है, वो जाएगा आपका मर्डर में। हाँ जी सर। ठीक है, अब बस इतनी सी बात है कि अगर ये सफिशिएंट इंजरी जो उसने दी है किस ऑब्जेक्ट से दी है, अब आते हैं हम यहाँ पे मोटिव से। ओके इफ यू सर। रिमेंबर इन स्टार्ट क्लास आई टॉक अबाउट द मोटिव एंड इंटेंशन, ये तो होगी इंटेंशन के बाद, हाँ जी। इंटेंशन टू कॉज सफिशिएंट बॉडीली इंजरी, और इंटेंशन कैसे पता चलेगी? उसके एक्ट से। अब मैं कह रहा हूं कि वो एक्ट जो उसने करा उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, क्यों करा उसने। अगर उसमें उद्देश्य प्रोवोकेशन आता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड हो गया, अगर उसके पीछे उद्देश्य कोई भी नहीं है, प्रोवोकेशन नहीं है, तो वो मर्डर हो गया। हियर वी डील अबाउट द मोटिव, फ्रॉम वेयर दैट मोटिव हैज कम। अभी एक बार आगे और बढ़ना, जैसे कि सेक्शन 2 एक्सेप्शन 2 है, ये कहता है कि प्राइवेट डिफेंस, इफ अ पर्सन एक्सरसाइज द प्राइवेट डिफेंस इन अ गुड फेथ बट एक्सीड द पावर, अगर प्राइवेट डिफेंस आपने यूज करा, इट्स द कंप्लीट डिफेंस, लेकिन आपने अपनी पावर को एक्सीड कर दिया, ज़्यादा यूज कर दिया, इवन आपको डिफेंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। जैसे कि सपोज आपके ऊपर कोई हमला करने की कोशिश कर रहा है, आपने अपने डिफेंस में उसके 2-3 मार दी, वो धरती में गिर गया, वो नीचे लेटा हुआ है,
वो आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, हाथ जोड़ के लेटा हुआ है, हाँ जी सर। वो क्षमा याचना कर रहा है। अब आप उसे मार देते हो, हियर यू किल दैट गाय, आपने उसको शूट कर दिया या फिर आपने उसे किसी वेपन से, शार्प वेपन से उसको मार दिया, वो कल्पेबल होमिसाइड है, वो मर्डर नहीं है। पर क्यों मर्डर नहीं है? क्योंकि इंटेंशन तो है। फिर आप ध्यान रखना, इंटेंशन तो दोनों में ही थी, बट मोटिव आर डिफरेंट। अगर मोटिव जो है आपका प्राइवेट डिफेंस से निकल के आया, प्रोवोकेशन से निकल के आया, या फिर आगे जो हम पढ़ेंगे उनसे निकल के आया, तो वो कल्पेबल होमिसाइड है। लेकिन मोटिव कुछ था ही नहीं, वैसे ही मार दिया। मोटिव सपोज ये मान लो कि पैसे लेने थे जी इसलिए मार दिया, इस तरीके से मोटिव है उनके, पुरानी दुश्मनी थी इसलिए मार दिया, वो मर्डर है। क्लियर हो रही है बातें? इंटेंशन तो बॉडीली इंजरी और सॉरी, इंटेंशन तो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर दोनों की सेम है, लेकिन उस इंटेंशन में बस ग्रेविटी का फर्क है। एक होता है कि कंप्लीट इंटेंशन, एक होता है कि थोड़ी बहुत, उसमें ग्रेविटी का फर्क है। और जो एक्सेप्शंस में मैं बात कर रहा हूं वो मोटिव की बात कर रहा है कि हाउ दैट मोटिव हैज बीन क्रिएट। जैसे कि अगला एक्सेप्शन फिर पढ़ेंगे इसी पे, culpable homicide is not the murder if the offender being a public servant or aiding the public servant acting for the advancement of public justice exceed the power given to them by law cause of death by doing an act which in a good faith। से सिंपल ये कह रहा है कि कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो अपनी लॉ की पावर को एक्सरसाइज करने के लिए या फिर किसी गुड फेथ में ये काम करता है और वो समझता है कि उसको ये रिक्वायर्ड है, उसमें अगर वो क्या कहते हैं कोई काम हो जाए। एक मिनट, दोबारा से पढ़ते। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर द ऑफेंडर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट एडिंग अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन द एडवांस ऑफ द पब्लिक जस्टिस एक्सीड द पावर, सॉरी यहाँ पे वर्ड थोड़ा सा ध्यान रखना, एक्सीड द पावर गिवन हिम बाय लॉ, कि आपको लॉ ने भेजा किसी को गिरफ्तार करने के लिए, आप एनकाउंटर करने लगे अननेसेसरली, एंड कॉज द डेथ बाय डूइंग एन एक्ट इन अ गुड फेथ बिलीव हिम टू बी लॉफुली नेसेसरी फॉर द ड्यू डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी एज अ पब्लिक सर्वेंट एंड विदाउट इल विल टुवर्ड्स द पर्सन कॉस्ट डेथ ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ पे देखना, आप ये कह रहे हैं कि पुलिस सर्वेंट ने अपनी पावर को एक्सीड में यूज करा, लेकिन उसकी मंशा गलत नहीं थी, उसे लगा कि मैं न्याय के लिए कर रहा हूं, लेकिन उसे ये जरूर पता था कि मैं एक्सीड कर रहा हूं अपनी पावर, रिक्वायर्ड नहीं है, अननेसेसरी रिक्वायर उसे यूज कर रहा हूं, ही विल बी लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। यू कांट किल एनीवन। किसी भी केस में, किसी भी एवज में, जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आते, आप किसी को मार नहीं सकते। लेकिन वो मर्डर भी नहीं है, क्योंकि मेरी उससे कोई दुश्मनी तो है ही नहीं, मैंने तो न्याय के लिए मारा था अपनी पावर से की एक्स्ट्रा अल्ट्रा वायरस यूज करके, तो मैं कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होऊंगा। अगला कहता है कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट कमिटेड विद द विदाउट प्री मेडिटेशन और सडन फाइट हीट ऑफ द पर्सन। अब फिर से वो प्रोवोकेशन और वो वाले बात है। प्रोवोकेशन में तो एक व्यक्ति दूसरे को प्रोवोक करता है, उससे कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, उससे एब्यूजिव लैंग्वेज में बात कर रहा है, या फिर उसको कास्ट कम्युनिटी जैसे वर्ड से प्रोवोक कर रहा है, तो उस वजह से मार दे। यहाँ पे क्या है, हीट ऑफ द मेडी, सडन फाइट, हीट ऑफ द मूवमेंट की वजह से, कि कोई दो व्यक्ति हैं, उनका कोई प्लान नहीं है एक दूसरे को मारने का, लेकिन सडन कोई उनके बीच में झगड़ा हुआ, मूवमेंट हीट पकड़ा और फिर उन्होंने मार दिया। ठीक है, वो आपका कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, मर्डर में नहीं आएगा। एक लास्ट और पढ़ते फिर एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। कल्पेबल होमिसाइड नॉट मर्डर विद द पर्सन विच डेथ इज कॉस्ट ऑफ द अबव 18 सफर द डेथ टेक द रिस्क डेथ विद हिज ओन कंसेंट। कि सपोज कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे मार दे, 18+ है, कंसेंट के साथ आप उसको मार देते हैं, तो वो आपका कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। आप ये डिफेंस नहीं ले सकते कि जी मेजर था, मैंने तो कंसेंट के साथ मारा। तो कंसेंट देगा तो मार थोड़ी ना दोगे किसी को अननेसेसरीली। उसके सेफ गार्ड के लिए डॉक्टर ऑपरेशन करता है, उसमें मर जाता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन कंसेंट देके किसी में सूट थोड़ी नहीं कर सकते। The object behind to provide the exception is only that to discuss the sum of the motive। कोर्ट ने कुछ मोटिव लिस्ट करे कि जी कई बार प्रोवोकेशन में आदमी मर जाता है, सडन फाइट में मर जाता है, प्राइवेट डिफेंस ज़्यादा कर दिया है उसमें मर जाता है, पुलिस ऑफिसर अपनी पावर का मिसयूज कर लेता है उसमें मर जाता है, या फिर कंसेंट से भी लोग एक दूसरे को मार देते हैं। इन सभी केसेस में जो डेथ कॉज होगी वो मर्डर नहीं होगी, कल्पेबल होमिसाइड होगी। अफेंस है, डेथ भी हुई है, अफेंस भी है, इंटेंशन भी है। जिस टाइम पे मार रहा था पता थी मर जाएगा, जिस टाइम पे इंजरी दे रहा था पता थी मर सकता है, जिस टाइम पे वो एक्ट कर रहा था नॉलेज थी कि ऐसा हो जाएगा।
लेकिन जो मोटिव उसने क्रिएट करा, जिस कारण से उसने वो ये सब कुछ करा है, वो मोटिव या तो हीट ऑफ द मूवमेंट है, प्रोवोकेशन है, या कंसेंट है, या फिर एनी अदर रीजन है, पब्लिक सर्वेंट है, प्राइवेट डिफेंस है, वो मोटिव उसका अलग है। वो मोटिव उसका बहुत ज़्यादा गलत नहीं है, गलत तो है ही, मानना कहीं पे सही नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली लेस बहुत, देखो थिन लाइन डिफरेंस है मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में, कंपैरेटिवली लेस। इंटेंशन की भी मैं बात करूं तो कल्पेबल होमिसाइड की कंपैरेटिवली लेस ग्रेविटी है, लेस, नॉट वेरी मच लेस, इट जस्ट अ माइन्यूट लेस फ्रॉम द मर्डर। और ये लाइन दोनों कोर्ट में झूलती रहती है, कल्पेबल होमिसाइड है या मर्डर है, कल्पेबल होमिसाइड, और यही डिसाइड करती है कि कितनी आप उसको पनिशमेंट देंगे। क्लियर? हाँ जी सर। अच्छे से गो थ्रू करना है एक बार इस सारे दोनों सेक्शंस एंड केप्ट दैट एवरी इलस्ट्रेशन विद योरसेल्फ। ठीक है, डोंट वरी, बहुत ईजी, एक बार आप पढ़िए फिर आप मुझे बताइएगा। बिल्कुल सर। इसके बाद एक दो सेक्शन है, वन इज अबाउट द अटेम्प्ट, ये पनिशमेंट है, सेक्शन 103 एंड 102 इज अबाउट द पनिशमेंट, हाउ मच द पनिशमेंट यू विल बी गिव द, एंड 105 सॉरी 103 and 105, how much the punishment are provided in a case of a murder that shall be punished by the death and imprisonment of life and fine, or in a case of a culpable homicide not amount to money shall be punishment of the imprisonment of life, imprisonment of either discretion for a term which may not be less than 5 year but may extend to 10 year। इसका मतलब कल्पेबल होमिसाइड में 5 से 10 साल तक की सजा या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है, और मर्डर के केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी। ठीक है, इसी वजह से उन दोनों चीजों में लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर जैसे ही कोई ऑफेंस मर्डर से कल्पेबल होमिसाइड में आ गया तो 5 से 10 वाली विंडो खुल गई, 5 या 6 साल की सजा दिलवा देंगे उसे। लेकिन अगर वो मर्डर प्रूव हो गया तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी, उन्हीं में से सजा मिलेगी फिर तो। ठीक है, एक है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड पर्सन एंड द अनसाउंड माइंड। अच्छा, एक अटेम्प्ट कर लेते हैं पहले। 109 इज अबाउट द अटेम्प्ट कि इफ द पर्सन डू एनी एक्ट, वेट अ मिनट, आई जस्ट गो विद द नेक्स्ट सेक्शन आल्सो। हाँ, 109 एंड 110, 110 है कल्पेबल होमिसाइड का अटेम्प्ट और 109 है मर्डर का अटेम्प्ट। अभी इसमें बड़ी एक सिचुएशन है कि इसमें देखो, जो कुछ मैंने अभी आपको सेक्शन 100 और 101 में पढ़ाया वो सारा कॉपी पेस्ट होगा, जस्ट अबाउट दैट कि एक्ट जो था ना, एक्ट की जो आउटपुट थी वो डेथ थी, डेथ नहीं हुई। आपने एक्ट भी करा, विद इंटेंशन करा, ये सोच के करा कि मर जाएगा, लेकिन बस मरा नहीं, बाकी सारा एक्ट वैसे ही हुआ। नाउ यू विल बी लायबल। अगर वो मर्डर का एक्ट था तो अटेम्प्ट टू मर्डर प्रूव हो लगेगा, अगर वो कल्पेबल होमिसाइड का एक्ट था तो अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड लगेगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी कई बार दिक्कतें ये आती है कि यहाँ पे मर्डर अटेम्प्ट लगाना या फिर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर लगाना, अटेम्प्ट कल्पेबल होमिसाइड का लगाना, ये बड़ा टफ गेम है, क्योंकि व्यक्ति तो मरा नहीं है, पर्सन इज अवेलेबल बिफोर यू। और जो थिन लाइन डिफरेंस था वो उन केसेस में आता था कि क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। सो हियर टू रिकॉग्नाइज इज क्वाइट डिफिकल्ट कि कौन सा सेक्शन लगेगा, बट वी हैव टू बी वेरी क्लियर विद दैट कि वही बात दिमाग में रखनी है, मोटिव चेक करना है। सबसे पहले तो इंटेंशन की ग्रेविटी चेक करनी है, कितनी ग्रेव इंटेंशन थी, स्टेट ऑफ माइंड क्या था, कितना इंश्योर था अपने एक्ट को लेके। देन वी गो विद द मोटिव कि मोटिव क्या था, किस वजह से वो ये काम करना चाहता था। अगर कोई व्यक्ति सुपारी लेता है या फिर उसका पेशा ही व्यक्तियों को मारने का है तो जी वो मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है या मर्डर है। लेकिन कोई व्यक्ति सम ऑफ द रीजन की वजह से उसको मार रहा है तो दैट कैन बी। अच्छा, एक बात तो नोटिस करना, रिवेंज नहीं लिखा हमने यहाँ पे, रिवेंज में नहीं मार सकते आप किसी को। रिवेंज तो क्या होता है कि आपके साथ बुरा हुआ, आप घर आए, तैयारी करी, फिर उससे बदला लिया। इट्स रॉन्ग। अगर आपके साथ इफ एनीथिंग रॉन्ग अकर्ड विद यू, देन व्हाई डोंट यू गो विद द पुलिस ऑफिसर्स। पुलिस ऑफिसर के पास जाइए, कंप्लेंट दर्ज कराइए एंड गेट द जस्टिस। ये नहीं कि खुद रिवेंज लेने चले गए, वो मर्डर है, रिवेंज मर्डर है। लेकिन हाँ, हीट ऑफ द मोमेंट पे गलत हुआ, उसी टाइम पे आपने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, उस मोमेंट में आपने कुछ कर दिया, वो रिवेंज नहीं है, वो कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगा। क्लियर हो रही है यहां तक बातें सारी? That is about the section 109 and 1110. Another section is also be there. Organized crime एक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। It also be the basic output of a BNS. It's simply अभी इसके बाद ना हम जब offense against property पढ़ेंगे, जिसमें robbery, theft, extortion,
एंड एनी सो मेनी थिंग्स विल बी डन। तो अगर कोई व्यक्ति कोई अनलॉफुल कमिटी, एक बार पढ़ते हैं, एक कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी इंक्लूडिंग किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, साइबर क्राइम, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स, ड्रग, वेपन, इलिसिट गुड्स एंड सर्विसेज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन, रैंसम माने रंगदारी मांगना, फिरौती मांगना, by any person or group of person acting in such consent singly or jointly either as a member of an organized crime syndicate on behalf such syndicate by such use of violence, threat of violence, intimidation। ये कह रहा है कि ऊपर वाले सारे ऑफेंस करे किसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज लोगों ने, और कैसे करे हैं, वायलेंस क्रिएट करा, लोगों को वायलेंस से डराया, इंटिमिडेट करा, कोएर्जन करा, और एनी अदर अनलॉफुल मीन्स, और कोई भी अनदर अनलॉफुल मीन्स यूज करा इनडायरेक्टली, देन ही विल बी लाइबल एज अ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह वो लाइबल होगा, ही विल बी लाइबल फॉर द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑफेंस। ठीक है, तो इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर क्रिमिनली कंस्पायर होके 4-5 लोग मिलके कोई ऑफेंस करते हैं, दे विल बी लाइबल फॉर द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। उसी ऑर्गेनाइज क्राइम में एक छोटा सा कंसेप्ट है पिट्टी ऑर्गेनाइज क्राइम की। एक तो ऊपर तो मैंने बड़े बड़े ऑफेंसेस गिनवाए आपको, रैंसम लेना, किडनैपिंग करना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करना, इकोनॉमिक ऑफेंस, साइबर क्राइम लाइक दैट, और यहाँ पे छोटे छोटे थेफ्ट, एनी एक्ट ऑफ थेफ्ट, स्नैचिंग, चीटिंग, अनऑथराइज सेलिंग ऑफ टिकट, अनऑथराइज बैटिंग ऑफ और गैम्बलिंग, सेलिंग ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन, क्वेश्चन पेपर सेल करना, दैट टाइप ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी क्वाइट पिटी। ऑर्गेनाइज जरूर है, आप जो काम कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन है, आपकी पूरी गैंग है, उसके साथ आप ये काम करते हैं, और तरीके से प्लान करके, विजिट करके, सारी चीज़ों को रिसर्च करके आपने वो काम करा। अगर वो बड़े ऑफेंस हैं तो ऊपर आएंगे, छोटे ऑफेंस हैं तो नीचे आएंगे। अब एक ऑफेंस यहाँ पे कॉमन है, वर्ड थेफ्ट, 112 में भी है और 111 में भी है। नीचे लिखा था सिंगली इज अबाउट द थेफ्ट, यहाँ पे लिखा है व्हीकल थेफ्ट। अगर नॉर्मल चोरी की कोई वारदात होती है तो वो तो आएगी 112 में, लेकिन अगर वाहन चोरी होते हैं दैट विल बी कम अंडर 111, 111 में। क्लियर? तो 111 बड़े ऑफेंस ऑर्गेनाइज क्राइम, और 112 इज 112 जो है पिटी ऑफेंसेस। क्लियर? चलो, आज कोई डाउट आपका? चलो, आज एक बार आप देख लेना, आज क्लास हम एंड करते हैं क्लियर विद एवरीथिंग। एक बार अच्छे से सारा पढ़ना है आपको, एंड देन कम टू मी, ओके? देखो, बहुत ज्यादा कहीं नहीं घूमना, सिंपल सी एक बात समझना, एक होता है मर्डर, एक होता है कल्पेबल होमिसाइड। ऑफेंस आपके सामने आया, फैक्ट आपके सामने क्लियर है, डेथ नहीं हुई, बस आपको माइंड में क्या सोचना है कि डेथ हो गई, यू हैव टू बी थिंक अबाउट डेथ हो गई। अब आपको ये सोचना है कि अगर वो डेथ हो गई तो क्या वो मर्डर होगा या कल्पेबल होमिसाइड होगा। अगर वो मर्डर होता है तो उसको अटेम्प्ट टू मर्डर बोल दें, अगर वो कल्पेबल होमिसाइड होता है तो उसे कल्पेबल होमिसाइड बोल दें। अब पता कैसे चलेगी जी अटेम्प्ट और ये मर्डर है कि कल्पेबल होमिसाइड है? तो पता दो ही तरीके से लगेगी। सबसे पहले मुझे देखनी कि किसकी इंटेंशन ज़्यादा ग्रेव है, कौन मेंटली स्ट्रांग है। अगर वो मेंटली स्ट्रांग है तो मर्डर है, अगर वो मेंटली वीक है, इंटेंशन उसकी वीक है, लाइकली और रिजेंबल जैसे वर्ड यूज होते हैं, तो वो जी आपका कल्पेबल होमिसाइड है। अगर उसमें स्ट्रॉन्ग कन्विक्टेड है, स्ट्रॉन्ग बिलीव जैसे वर्ड यूज होते हैं, सफिशिएंट बिलीव जैसे वर्ड यूज होते हैं, तो वो मर्डर है। ठीक है। दूसरा तरीका है उसका मोटिव देखना। मोटिव जो मैंने 5 एक्सेप्शंस की लिस्ट बताई है, प्राइवेट डिफेंस, कंसेंट, प्रोवोकेशन, हीट ऑफ द मूवमेंट एंड पब्लिक ऑफिसर एक्सेस पावर। अगर इन 5 चीजों में फॉल कर रहा तो कल्पेबल होमिसाइड है, उसको उसमें कन्वर्ट कर दें। ऑफेंस वही हुए हैं, बस जो डेथ होनी थी ना आउटपुट में, वो डेथ नहीं हुई। बंदा हॉस्पिटलाइज हो गया, जो भी उसके साथ हुआ हो गया, पर डेथ नहीं हुई, बाकी सब वही हुए। क्लियर? अब इसमें एक बात बच्चों की ये आती कि जी डेथ नहीं हुई तो इसका मतलब वो इंजरी हुई है, तो हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में क्यों नहीं गए? 3 ऑफेंसेस हैं, देखो, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट और डेथ। ये तो ज्यादा ग्रेव है, ये उससे भी ज्यादा ग्रेव है। अब कोई व्यक्ति को मैंने मारने की कोशिश करी, वो हॉस्पिटलाइज हो गया, अब उस पर ग्रीवियस हर्ट लगेगा या अटेम्प्ट टू डेथ लगेगा? ये मुझे ये बात बताएगी कि जो एक्ट हुआ, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में आया है, अगर वो किसी और के साथ होता
तो वो तो मर जाता। अगर कोई व्यक्ति बचा है तो अपने फिजिक स्ट्रांग की वजह से बचा है या फिर अपनी विल पावर की वजह से बचा है। हमें ये देखना है कि ऑर्डिनरी केस में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ अगर ऐसा होता तो क्या वो जिंदा रहता। अगर वो जिंदा रहता तो जी ग्रीवियस हर्ट है, लेकिन अगर ऑर्डिनरी व्यक्ति मर जाता है ऐसे केस में तो वो डेथ है, अटेम्प्ट टू डेथ है। ठीक है, ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन का रूल लगाना है। और ग्रीवियस हर्ट जब हम पढ़ेंगे तब उसकी उन्होंने लिस्ट भी दे रखी है कि कौन कौन से केसेस में ग्रीवियस हर्ट होगी, तो वो लिस्ट लगानी है या फिर। ठीक है, चलो ओके देन बाय।